السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی پر عالمی خبرنامہ۔ میں ہوں ناظمہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ جنین پناہ گزین کیمپ میں مکانات کو ہوا میں اڑا دینا، فلسطینی عوام کے خلاف نسل کشی کا ہے تسلسل۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا کیا مطالبہ۔ امریکی ٹیرف وار، اب یورپ بھی ٹرمپ کے نشانے پر۔ چین، کینیڈا اور میکسیکو پر ٹیرف سے ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں شدید مندی۔ امریکی وزیر خارجہ کا دورہ پاناما، صدر سے کی ملاقات۔ کچھ بہت طاقتور ہونے والا ہے، ٹرمپ نے پاناما کے بارے میں دیا بیان۔ پاناما برائے فروخت نہیں، امریکی وزیر خارجہ روبیو کے دورے کے بعد مقامی عوام کا زبردست احتجاج، ٹرمپ اور مارکو روبیو کے پوسٹرز نظر آتش۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ اور تدفین جاریہ ماہ ادا کرنے کا اعلان۔ حسن نصر اللہ کو لگ بھگ 5 ماہ بعد سپرد خاک کیا جائے گا۔ اور سوڈان کے شہر درمان کی ایک پرہجوم مارکیٹ پر حملے کے نتیجے میں کم از کم 54 افراد ہلاک، 150 سے بھی زائد زخمی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسرائیلی فوج کے مقبوضہ مغربی کنارے میں آپریشن کے دوران جنین پناہ گزین کیمپ میں دھماکوں سے کئی مکانات تباہ ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے جنوری کے وسط سے لے کر اب تک مغربی کنارے میں 50 فلسطینی جنگجوؤں کو شہید کر دیا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے جنین میں اسرائیلی فوج کی جانب سے عمارتوں کی تباہی کی مذمت کی اور اسے وحشیانہ کارروائی اور نسل کشی قرار دیا۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ جنین اور طول کرم کیمپوں میں رہائشی عمارتوں کی تباہی کو روکا جا سکے۔ میکسیکو، کینیڈا اور چین پر محصولات عائد کرنے کے ایک دن بعد صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ یورپی یونین کی اشیاء پر بھی بہت جلد ٹیرف لگائیں گے۔ ماہرین کے مطابق اس تجارتی جنگ سے امریکی ترقی سست اور قیمتوں میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ پیش ناظرین اہم تفصیلات اس رپورٹ میں۔ میکسیکو، کینیڈا اور چین پر ٹیکس عائد کرنے کے ایک دن بعد صدر ٹرمپ نے کہا کہ اب وہ یورپی یونین کی اشیاء پر بھی بہت جلد ٹیکس نافذ کر دیں گے۔ ماہرین کے مطابق اس تجارتی جنگ سے امریکی ترقی سست اور قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ امریکی صدر نے میکسیکو اور کینیڈا پر 25% اور چین پر 10% ٹیکس عائد کرنے کے ایک دن بعد میڈیا سے بات کی اور کہا وہ یقینی طور پر یورپی یونین پر بھی نئے ٹیرف لگائیں گے کیونکہ ہم سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے 27 ممالک کے بلاک یورپی یونین کے ساتھ امریکی تجارتی خسارے کے بارے میں شکایات کا اعادہ کیا اور کہا میں اس کے لیے کوئی ٹائم لائن مقرر نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ بہت جلد ہو جائے گا۔ واضح ہے کہ ٹرمپ پہلے بھی یورپی یونین کو محصولات نافذ کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں۔ امریکی صدر نے اوول آفس میں میڈیا کو بتایا کہ یورپی یونین نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ تاہم یورپی یونین نے کہا اگر امریکی صدر نے محصولات عائد کیے تو وہ مضبوطی سے جواب دیں گے۔ یونین کے ایک ترجمان نے کینیڈا، چین اور میکسیکو پر ٹرمپ کے ٹیکسز پر بات کی اور کہا یورپی یونین کسی بھی تجارتی پارٹنر کو سختی سے جواب دے گا۔ ٹرمپ کی یورپی یونین کو وارننگ ایسے وقت سامنے آئی ہے جب ان کے قریبی اتحادی ایلون مسک، جو دنیا کے امیر ترین شخص ہے، یورپی سیاست میں داخل ہو رہے ہیں۔ مسک نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک نعرہ پوسٹ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے حالیہ انتخابی نعرے میک امریکہ گریٹ اگین کے طرز پر انہوں نے میک یورپ اگین کا نعرہ دیا اور مسک نے لکھا یورپ کے لوگ میگا موومنٹ میں شامل ہو جائیں، یورپ کو پھر سے عظیم بنائیں۔ ٹرمپ نے میڈیا کو بتایا کہ وہ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور میکسیکو کے ساتھ آج بات چیت کریں گے۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر ٹرمپ نے لکھا کیا کچھ درد ہوگا، ہاں شاید اور شاید نہیں بھی، لیکن ہم امریکہ کو ایک بار پھر عظیم بنائیں گے۔ چین، میکسیکو اور کینیڈا امریکہ کے 3 سر فہرست تجارتی شراکت دار ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ تجارتی جنگ سے امریکہ کی کم از کم خلیل مدت میں ترقی میں کمی اور قیمتوں میں اضافہ ممکن ہے۔ بیورو رپورٹ،
सियासत टीवी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पनामा कैनाल का दौरा किया और इसके कंट्रोल के तनाज़े के दरमियान अमेरिका ने पनामा को खबरदार किया कि वो चीनी कारोबार के असर रसूख अपने खदशात को दूर करने के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम करे। अमेरिका ने चीन की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया। हांगकांग में कायम एक कंपनी के जरिए जो नहर के दाखिली रास्तों के करीब 2 बंदरगाहें चला रही हैं, पनामा कैनाल को वापस लेने पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया कि कुछ ताकतवर होने वाला है। China's running the Panama Canal. That was not given to China, that was given to Panama foolishly. But they violated the agreement and we're going to take it back or something very powerful is going to happen. I don't think troops will be necessary in Panama. What Panama has done is terrible financial security for this part of the world. And you know, 70% of the signage on the Panama Canal was written in Chinese. That's not right. It wasn't meant for China. It should have never been made. The deal was a ridiculous deal. We lost 38,000 people building the Panama Canal, one of the great wonders of the world. 38, think of it, 38. It was the most expensive project ever built by this country, if you take it forward. The most expensive project ever built. We lost 38,000. And what happens? China owns it all of a sudden? It's not going to happen. We're not going to let that happen. We have national security concerns. अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने इतवार को पनामा में पनामा के सदर से मुलाकात की। वाज़ेह कि अमेरिका के 47वें सदर ट्रंप के ओवल ऑफिस का चार्ज संभालने के बाद मार्को रूबियो का यह पहला गैर मुल्की दौरा था। पनामा कैनाल के हवाले से संजीदा बातचीत मुतवक्के है, क्योंकि ट्रंप की जानिब से इसमें दिलचस्पी ज़ाहिर करने के बाद ये मामला संगीन होता जा रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के दौरे पनामा सिटी के बाद मुकामी लोग अमेरिकी आला सिफारतकार रूबियो के खिलाफ सड़कों पर उतर पड़े। मुजाहिरीन ट्रंप की पनामा कैनाल पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने की धमकियों पर मुश्तइल हो गए थे और मुश्तइल मुजाहिरीन को ट्रंप और अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा रूबियो के पोस्टर्स जलाते हुए देखा गया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने ट्रंप और रूबियो के खिलाफ नारे भी लगाए, प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर लिखा था पनामा बराए फरोख्त नहीं। गुज़िश्ता साल इसराइल के फ़िज़ाई हमले में हलाक हो जाने वाले हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा और तदफीन जारिया माह में अदा करने का ऐलान किया गया है। इस तरह हसन नसरुल्लाह को उनकी हलाकत के ठीक 5 माह बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा और ये तमाम चीज़ें लगभग फरवरी के आखिर महीने में की जाएगी। पेशनाज़ इन तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता साल इसराइल के फ़िज़ाई हमले में शहीद हो जाने वाले हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा जारिया माह यानी कि फरवरी में अदा करने का ऐलान किया गया है। हिज़्बुल्लाह के मौजूदा सरबराह नईम कासिम ने कहा, मकतूल रहनुमा की नमाज जनाजा 23 फरवरी को अदा की जाएगी। उन्होंने टेलीविज़न पर अपने खिताब में कहा कि इसराइल और हिज़्बुल्लाह की मुसलसल 2 माह तक जारी रहने वाली जंग के 27 नवंबर को जंग बंदी के बाद सिक्योरिटी के हालात ऐसे हो गए हैं कि अब नमाज जनाजा अदा की जा सकती है। इसीलिए हिज़्बुल्लाह ने 23 फरवरी को नमाज जनाजा के अवामी इज्तिमा के इनेकाद का फैसला किया। इस तरह हसन नसरुल्लाह को उनकी हलाकत के लगभग 5 माह बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर 2023 को शहीद हो गए थे और उस वक्त हिज़्बुल्लाह ने उनकी आरज़ी तदफीन की थी। नईम कासिम ने मजीद कहा, हसन नसरुल्लाह के जसद खाकी को बैरूत के मज़फ़ात में पुराने और नए एयरपोर्ट के दरमियान एक खित्ते में दफन किया जाएगा। ये पहला मौका है कि नईम कासिम ने इस बात की तस्दीक भी की है कि हसन नसरुल्लाह के बाद हाशिम सफ़ीउद्दीन को उनका जानशीन बनाया गया था, लेकिन हाशिम सफ़ीउद्दीन भी अक्टूबर 2023 में इसराइली हमले में शहीद हो गए थे। हाशिम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा भी 23 फरवरी को अदा की जाएगी और उनकी तदफीन उनके आबा इलाके देर खानून में की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। उधर शाम में एक कार में बम धमाके में 15 अफराद जहां बहक हो गए। शाम के शहर मनीज में होने वाले कार बम धमाके में 15 अफराद जहां बहक हुए, जबकि धमाके में 15 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। धमाके में हलाक हो जाने वालों में 14 खवातीन और 1 मर्द शामिल है, जबकि जख्मी हो जाने वाली तमाम खवातीन हैं। हलाक और जख्मी हो जाने वाले तमाम अफराद खेतों में काम किया करते थे।
उधर सूडान के शहर उम्मे दुरमान की एक पुरहुजूम मार्केट पर हमले के नतीजे में कम अज कम 54 अफराद हलाक हो गए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक 150 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी सूडान की RSF पर आयद की गई है। ये ग्रुप अप्रैल 2023 के बाद से मुल्क में ताकत हासिल करने के लिए सूडानी फोर्सेस के साथ जंग जलदल में मसरूफ है। और उधर मगरबी ममालिक और इंसानी हकूक के ग्रुप अफ्रीकी मुल्क सूडान के इन दो मुतहरिब ग्रुप पर बड़े पैमाने पर जंगी जराइम के इल्जाम लगाते हैं, जिनमें बड़ी तादाद में लोगों को कत्ल करना, खवातीन और लड़कियों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद और सिविलियन इमारात को निशाना बनाना, जिसमें अस्पताल और चर्च भी शामिल हैं। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइन के परवाज में टेक ऑफ के दौरान आग लग जाने से तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। ह्यूस्टन से न्यूयॉर्क जाने वाली परवाज के इंजन में खराबी के बायस आग भड़क उठी, जिसके बाद मुसाफिर को तैयारे से बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। यूनाइटेड एयरलाइंस ने इस वाक़े की तस्दीक की और एक बयान जारी करते हुए कहा, 2 फरवरी को यूनाइटेड एयरलाइंस की परवाज के अमले ने टेक्सास के जॉर्ज बुश इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल ह्यूस्टन एयरपोर्ट से बाहिफाजत अपना टेक ऑफ मंसूख किया। यूनाइटेड एयरलाइंस में लगने वाली आग ने अमेरिका में हालिया एविएशन हादसात के सिलसिले में इजाफा किया, जिससे अमेरिका में परवाजों की हिफाजत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिकी सदर ट्रंप की दावत पर वाशिंगटन के दौरे पर है। तवक्को है कि नेतन्याहू कल अमेरिकी सदर ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता इश्तविकोफ से मुलाकात करेंगे और मंगल को फिर व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात होगी। तवक्को है कि गजा, जंगी कैदी और ईरान नेतन्याहू और ट्रंप के एजेंडे पर बातचीत करेंगे। वाशिंगटन रवानगी से कबल नेतन्याहू ने दावा किया कि वो हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हमलों से मशरिक़ वस्ता का चेहरा बदल रहे हैं और ये फैसले नए नक्शे भी खींच रहे हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। जनीन पनाहगज़ीन कैंप में मकानात को हवा में उड़ा देना, फलस्तीनी अवाम के खिलाफ नस्ल कुशी का है तसलसल। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का किया मुतालबा। अमेरिकी टैरिफ वॉर, अब यूरोप भी ट्रंप के निशाने पर। चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ से एशियाई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का दौरे पनामा, सदर से की मुलाकात, कुछ बहुत ताकतवर होने वाला है, ट्रंप ने पनामा के बारे में दिया बयान। पनामा बराए फरोख्त नहीं, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो के दौरे के बाद मुकामी अवाम का जबरदस्त एहतजाज, ट्रंप और मार्को रूबियो के पोस्टर्स नज़र आतिश। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा और तदफीन जारिया माह अदा करने का ऐलान। हसन नसरुल्लाह को लगभग 5 माह बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा। और सूडान के शहर उम्मे दुरमान की एक पुरहुजूम मार्केट पर हमले के नतीजे में कम अज कम 54 अफराद हलाक, 150 से भी ज्यादा जख्मी। इसके साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।